Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Dharanam Chavi Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtapaye Shabhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Naishtaki. So today we will be reading from the second canto Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.2. Second canto, chapter number 9 and verse number 2. Bahurupa eva bhati mayaya bahurupaya ramaro guneshvasya mamaham iti manyate. The illusioned living entity appears in so many forms offered by the external energy of the Lord. While enjoying in the modes of material nature, the encaged living entity misconceives thinking in terms of I and mine. The different forms of the living entities are different dresses offered by the illusory external energy of the Lord. According to the modes of nature, the living being desires to enjoy. The external material energy is represented by her three modes, namely goodness, passion, and ignorance. So even in the material nature, there is a chance of an independent choice by the living entity. And according to his choice, the material energy offers him different varieties of material bodies. There are 9 lakh varieties of material bodies in the water, 2 lakh vegetable bodies, 1.1 lakh worms and reptiles, 10 lakh forms of birds. Sorry, it was 11 lakh worms and reptiles, then 10 lakh forms of birds, then 30 lakh different bodies of beasts, and 4 lakh human forms. Altogether, there are 84 lakh varieties of bodies in different planets of the universe. And the living entity is traveling by so many transmigrations according to the different modes of enjoying spirit within himself. Even in one particular body, the living entity changes from childhood to boyhood, from boyhood to youth, from youth to old age, and from old age to another body created by his own action. The living entity creates his own body by his personal desires, and the external energy of the Lord supplies him the exact form by which he can enjoy his desires to the fullest extent. The tiger wanted to enjoy the blood of another animal, and therefore, by the grace of the Lord, the material energy supplied him the body of the tiger with facilities for enjoying blood from another animal. Similarly, a living entity is desiring to get the body of a demigod in a higher planet and also get it by the grace of the Lord. And if he is intelligent enough, he can desire to get a spiritual body to enjoy the company of the Lord, and he will get it. So the minute freedom of the living entity can be fully utilized, and the Lord is so kind that he will award the living entity the same type of body he desires. The living entity's desiring is like dreaming of a golden mountain. A person knows what a mountain is, and he knows also what gold is. Out of his desire only, he dreams of a golden mountain, and when the dream is over, he sees sometimes something else in his presence. He finds in his awakened state that there is neither gold nor a mountain, and what to speak of a golden mountain. The different positions of the living entities in the material world under multifarious manifestations of bodies are due to the misconceptions of mind and eye.
The karmi thinks of this world as mine, and the jnani thinks I am everything. The whole material conception of politics, sociology, philanthropy, altruism, etc., conceived by the conditioned souls is on the basis of this misconceived I and mine, which are products of a strong desire to enjoy material life. Identification with the body and the place where the body is obtained under different conceptions of socialism, nationalism, family affection, and so on and so forth is all due to forgetfulness of the real nature of the living entity. And the whole misconception of the bewildered living entity can be removed by the association of Sukdev Goswami and Parikshit Maharaj, as all this is explained in Śrīmad-Bhāgavatam. ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सागरा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरनिता शिवशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिभाषा वेदान्ते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिया कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So it's my fortune to be with all of you and sharing. I'm giving opportunity to speak on this transcendental subject matter, that is Śrīmad-Bhāgavatam. So before I start the class, I will request again, at least a few more devotees can switch on their camera if possible. Last time also I offered tulsi leaves on behalf of those who have switched on their camera. For others, I just prayed. So the same offer is applicable today as well. Surely I'll offer tomorrow when I go to the altar. Okay, so thanks to Vinitha Mataji and Isha Pati Mataji for switching on their camera. Ritu Saksena Mataji as well. Last time also Ritu Mataji attended. And I don't remember about Isha Mataji, whether she attended last time or not. Thanks to everyone. Okay, so I'll just move ahead. देखिए यहाँ पे छोटा सा ट्रांसलेशन है, मतलब 4-5 लाइन का ट्रांसलेशन, और शील प्रभुपाद ने कम से कम 2-3 पेजेस का परपोर्ट दिया। तो शील प्रभुपाद ने हमेशा प्रयास किया कि कैसे हमको अवेयर करा सकें मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में। एंड जितने भी भक्ति विधान परपोर्ट हम पढ़ते हैं उसका एक एसेंस निकलता है कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत के प्रति हमारा थोड़ा सा डिटैचमेंट कल्टीवेट हो सके, अल्टीमेटली हम कंप्लीटली डिटैच हो सकें और आध्यात्मिक जगत से पूरे से हम अटैच हो सकें। इनफैक्ट अगर हम अपना लेवल ऑफ एडवांसमेंट भी कभी चेक करना चाहें तो इस माध्यम से हम कर सकते हैं कि टू व्हाट डिग्री वी आर रियली गेटिंग डिटैच्ड टू द मटेरियल एक्टिविटीज, टू द मटेरियल एंजॉयमेंट, और किस मात्रा में हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्रति हमारा अप्रिशिएशन बढ़ रहा है या हमारा अटैचमेंट कल्टिवेट हो रहा है। इसका जितना डिफरेंस होगा उतना हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, या वो हमारी स्पिरिचुअल हाइट भी बोल सकते हैं। और अगर हमको लग रहा है कि कुछ हमारा स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट के प्रति भी अटैचमेंट है बट मटेरियल डिटैचमेंट नहीं है, देयर आर चांसेस दैट दीज आर जस्ट इमोशंस। हाँ,
देयर आर हैवी चांसेस दैट दीज मे बी जस्ट इमोशंस। हम एक इमोशनली ही केवल कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर स्पिरिचुअली अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दोनों चीजें होंगी, मटेरियल अटैचमेंट प्लस स्पिरिचुअल अटैचमेंट, बोथ थिंग्स विल हैपन। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं किस प्रकार से लिविंग एंटिटी जो है वो फॉरगेटफुलनेस की वजह से अपने आप को बॉडी और बॉडी रिलेशनशिप्स में आइडेंटिफाई करने लगती है ना। जहाँ जो जिस जगह पैदा होता है उसी जगह से आइडेंटिफाई करना अपने आप को शुरू कर देता है। Even translation shows the illusion living entity appears in so many forms offered by the external energy of the Lord while enjoying the modes of nature, material nature. The encaged living entity misconceives thinking in terms of I and mine. So the translation also points on the same thing. The purport also Prabhupada mentioning the same thing, that to remove this bodily concept of life is very difficult. आप देख सकते हैं किस प्रकार से धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके प्रति तो धृतराष्ट्र का बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, परंतु चूंकि वो पांडवों के पुत्रों को, जो कि उसी के भाई के पुत्र थे, उनको अपने पुत्र जैसा नहीं देख पाता था। उस वजह से यद्यपि गुणवत्ता के हिसाब से देखेंगे तो दे वर अमेजिंग, लाइक पांडवास वर अमेजिंग, कितने कितने गुण थे, बट स्टिल धृतराष्ट्र जो है वो उनके गुणों की इस प्रकार से तारीफ नहीं कर पाते थे, अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे, उनको अपना नहीं मान पाते थे। जबकि लाइक जो पांडवों का एटीट्यूड था धृतराष्ट्र के प्रति, दैट वाज वेरी अप्रिशिएटिव, क्योंकि उनके संस्कार वैसे थे और वो उनको अपना रिलेटिव के रूप में ही मानते थे। बट धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण से जब देखते थे तो धृतराष्ट्र यूज्ड टू सी देम एज अनदर लिविंग एंटिटी, लाइक अनदर बीइंग, और अपने बच्चों के कॉम्पिटिटर के रूप में देखते थे कि कहीं आगे बढ़कर आगे जा करके हमारे पुत्र को राज सिंहासन मिल ही पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये धृतराष्ट्र का टेंशन, चिंता का विषय रहता था। बिकॉज युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ था तो बाय डेफिनेशन युधिष्ठिर को ही सिंहासन मिलना था, परंतु धृतराष्ट्र दुर्योधन को सिंहासन दिलवाना चाहते थे। यद्यपि बिल्कुल भी क्वालिटीज की अगर बात करें तो दुर्योधन वाज एन एक्सट्रीमली नेगेटिव, युधिष्ठिर वाज एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव, बट स्टिल दैट इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। देखिए ये अटैचमेंट की वजह से हमारी बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ियां होती हैं। एट द सेम टाइम अटैचमेंट forces us to get ourselves involved into many vicious activities as well. तो अटैचमेंट को काटना बहुत जरूरी है। हमारा एक एक डिसीजन जो है वो हमारे फ्यूचर को जनरेट करता है, और डिसीजन के पीछे गवर्निंग फैक्टर है हमारा फ्री विल, एंड डेफिनेटली द मोड्स इन विच वी आर सिचुएटेड। पर मोड्स में भी हम सिचुएट होते हैं फ्री विल की वजह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्री विल। जिस प्रकार फ्री विल हमारी जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में हमारी डिसीजन मेकिंग जाती है, उसी डायरेक्शन में हमारा फ्यूचर जाता है। हर मोमेंट में वी आर ऑलवेज डिसाइडिंग समथिंग और अदर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्लास में 15 लोग हैं, तो आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि आपको आज की क्लास में आना था। हो सकता है इस समय पे कोई दूसरी गतिविधियां, कोई दूसरे कार्यकलाप भी हो सकते थे, बट सिंस यू मेड अ कॉन्शियस चॉइस ऑफ कमिंग एंड अटेंडिंग दिस भागवतम क्लास, ओके, सम अदर डिवोटीज मस्ट बी कनेक्टेड जिन्होंने डिसाइड किया कि इसकी वजह से उनको कुछ दूसरा कार्य करना है। तो फ्री विल को जिस प्रकार से हम एक्सरसाइज करते हैं उसी प्रकार से फिर हमारा आगे का डेस्टिनेशन क्लियर होता है। तो इन दैट वे वी आर व्हाट वी हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड इन आवर लाइफ टू डू इन द पास्ट। आज हम जिस भी पोजीशन में खड़े हैं, जो भी सुख और दुख हमारे ऊपर आ रहे हैं, वो सब हमारी ही खुद की कॉन्शियस चॉइसेस हैं जो हमने पास्ट में सेलेक्ट की हैं। तो इसीलिए लाइक एक्चुअली भगवत गीता 5 सब्जेक्ट मैटर्स डील करता है ना, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। तो 4 तो इसमें कांस्टेंट है। ईश्वर कांस्टेंट है, प्रकृति कांस्टेंट है, जीव कांस्टेंट है, काल यानी समय कांस्टेंट है। तो केवल कर्म ही वेरिएबल है, बाकी 4 तो कांस्टेंट है।
तो जो वेरिएबल पार्ट कर्मा है, दैट इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन वंस फ्री विल. तो more than billion times in our life we will get the opportunity to select between Maya and Krishna. हाँ, करोड़ों करोड़ों बार हमारे सामने ये प्रश्न आएगा कि अभी हमको क्या करना है, माया को सिलेक्ट करना है कि कृष्ण को सिलेक्ट करना है. जिस प्रकार की हमारी चॉइसेस रहेंगी उस प्रकार से हमारा फ्यूचर जो है वो आगे बढ़ जाएगा. सुबह से लेकर के शाम तक वी ऑल मेक कॉन्शियस चॉइसेस. हाँ, अगर हमको जो भी हमारे रेगुलेटेड नंबर ऑफ राउंड है वो हमको सुबह ही चैंट करने हैं कि दोपहर में करने हैं कि रात तक उसको खींचना है. शील प्रभुपाद की बुक रीडिंग है, सुबह ही कर लेनी है कि उसको रात तक खींचना है ना. व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुछ इंटरटेनिंग रहते हैं, है ना. इंटरटेनमेंट की तरफ जाना है कि नीड्स की तरफ जाना है, नीड वर्सेस डिजायर. तो इन दैट वे वी ऑलवेज हैव द कॉन्शियस चॉइस. तो जितने अच्छे मोड में हम सिचुएटेड रहते हैं उतनी अच्छी हमारी चॉइसेस बनती है. पर वो मोड्स भी हमारी फ्री विल के आधार पे ही बार बार डिसाइड होते हैं. 14.10 सेज दैट हमेशा ही 3 मोड्स में कंपटीशन रहता है. कभी मोड ऑफ गुडनेस पैशन और इग्नोरेंस पे भारी पड़ के आगे आ जाता है, कभी इग्नोरेंस पैशन और गुडनेस पे भारी पड़ के आगे आ जाता है. एंड सिमिलर विद पैशन, कभी पैशन गुडनेस और इग्नोरेंस पे भारी पड़ के आगे आ जाता है. तो इन दैट वे उस मोड का तो फोर्स पड़ता ही है हमारे पास में. हाँ, जो हमारी डिसीजन मेकिंग में हमारी सहायता करता है या हमारे सामने कष्ट उत्पन्न करता है. समटाइम्स वी नो व्हाट इज गुड but the fourth within is so high that we are unable to adhere with what we want to do. जैसे कई बार होता है कि जैसे see like mind should be under the control of intelligence. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिल्ली जाना था पर स्टेशन में जाकर के मैं साउथ इंडिया जाने वाली ट्रेन में बैठ के कन्याकुमारी पहुंच गया, सो एवरीवन विल लाफ एट मी. कि मतलब आप यहाँ से घर से बोल करके गए थे कि आप दिल्ली जाओगे और पहुंच गए आप हैदराबाद. एवरीवन विल लाफ एट मी, करेक्ट. So similarly, if a person is wishing to go to a temple and if he goes to the liquor shop, everyone will laugh at him, correct. So similarly, suppose कीजिए we have decided our life in this way, but if the mind is taking us from one place to another, the places where we don't want to visit, that means the mind is in control, intelligence is not in control. Mind is dominating the intelligence, which is not the healthy equation of one's life. कई बार सोशल मीडिया में हम खोलते कुछ करने के लिए कहीं कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं. है ना, सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा कुछ चेक कर लेते हैं सोशल मीडिया, कुछ अपडेट्स वगैरह कुछ है, कुछ मैसेज कुछ चेक कर लेते हैं, पता चला कहीं के कहीं निकल जाते हैं और वापस लौट करके आते हैं तो पता चलता है 1 घंटा 2 घंटा निकल गया. So in that way, to the degree one is self-controlled, to that degree one will be the beneficiary. जिस मात्रा में हमारी इंद्रियां नियंत्रित रहेंगी, जिस मात्रा में हम उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे, उस मात्रा में फर्दर वो इंद्रियां प्यूरिफाई होंगी, उस मात्रा में हम भी प्यूरिफाई होंगे और हमारा गंतव्य अच्छा रहेगा. Life is short, definitely it's not a long life, but our conscious choice, our consciously selecting right choices in our life will bring a very good destination in our life, that is for sure. And in spiritual life, faith plays a very important role. कितना फेथ है हमको प्रोसेस में और कितने अच्छे से हमने प्रोसेस को समझा हुआ है, उसी मात्रा में हमारा इंथुजियाज्म, हमारा उत्साह भी आएगा. Clarity is power. To the degree a person is very much clear about what he is going to receive. जैसे रिटर्न वैल्यू एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी भी भक्ति में किसी भी प्रकार की ऑस्टेरिटीज जब हमारे सामने आती हैं तो हमको थोड़ा सा कष्ट लगता है, पर हम उसी मात्रा में उन कष्टों को एक्सेप्ट कर पाते हैं जिस मात्रा में हमको उसकी रिटर्न वैल्यू क्लियर हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं 500 का नोट किसी से मांग करके उसको 2000 का नोट दूंगा तो बहुत खुशी खुशी मुझे वापस दे देगा 500 का नोट, है ना.
इफ आई जस्ट गो विद द ऑफर कि भाई आप मुझे 2000 का नोट दीजिए, मैं आपको 2000 का नोट दूंगा, आप मुझे केवल 500 का नोट दीजिए। हाँ, चेक कर लेगा कि कहीं मैं नकली नोट तो नहीं दे रहा, पर देखिएगा असली नोट है तो वेरी इजली ही विल गिव। लोग बाग वैसे भी अपने पैसे को बैंक में एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग जमीन खरीदते हैं, लैंड परचेज करते हैं। करेक्ट। तो जहाँ भी उनको रिटर्न वैल्यू हाई समझ में आती है, वहां पे लोग तो खुद ही वॉलंटरली अपने पैसे को लगाते हैं। इसी प्रकार से जब हम श्रीमद् भागवतम जैसे स्क्रिप्चर्स को अच्छे से पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और जब हमको समझ में आता है कि किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में रिटर्न वैल्यू इज मच मोर हायर देन व्हाट वी कैन इमेजिन, then we start investing our time, energy and enthusiasm in the direction of Krishna consciousness. This is the simple fact. तो जिस व्यक्ति को ये रिटर्न वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जितना समझ में आता है, उतना ज्यादा ही वो अपने आप को संलग्न कर पाएगा भगवान की इस दिव्य भक्ति योग में। जितना कम समझ में आएगा, उतना फिर डर डर के इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए, अगर कोई बैंक अगर ऑफर देता है कि लाइक वी आर गिविंग 200% इंटरेस्ट इन अ ईयर, तो जितना भी हमारा पैसा है हम तो उस बैंक में ही डिपॉजिट करना चाहेंगे ना, क्योंकि आज मैं 1 लाख रुपए डिपॉजिट करूंगा, 1 साल बाद मुझे वो 2 लाख करके मिलेगा। करेक्ट। सो इन दैट वे केवल मैं अपनी नीड्स के हिसाब से पैसे को बचा करके बाकी पूरा पैसा क्या करूंगा, बैंक में डिपॉजिट करा दूंगा, क्योंकि कहीं और इतना रिटर्न वैल्यू नहीं मिलेगा। किसी भी बिजनेस को मैं इतने जल्दी 1 साल में डबल नहीं कर पाऊंगा। So I will definitely go for it. So similarly, when a person gets the understanding that how he will be the beneficiary by becoming Krishna conscious, he will definitely try to engage his all the time, energy, and enthusiasm in Krishna's service. One will become very responsible. हमको एक्चुअली भक्ति में जस्ट एक इमोशनल डिवोटी नहीं बनना है, बल्कि हमको एक जिम्मेदार भक्त बनना है। Either accept the life of responsibility or suffer. We don't have the third choice. Those who acted responsibly, है ना, they don't suffer. When we act irresponsibly, we do suffer. कितने सारे केसेस हमको श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं, जहाँ पे लोग बाग जो हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते, कुछ लोग इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करते। Whenever Indra acted irresponsibly, he had to suffer. 6th कैंटो भागवतम देख लीजिए, कैसे जब उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति का उचित आदर सत्कार नहीं किया था, उनके बृहस्पति के राज्यसभा में आने पे खड़े नहीं हुए थे, सम्मान प्रदर्शित नहीं किया था, तो क्या हुआ था, बाद में जो डेमंस थे उन्होंने आसानी से स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया, इंद्र को इंद्रासन से हटा दिया और इनकी हालत खराब हो गई। क्यों? बिकॉज दे मेड अ कॉन्शियस चॉइस ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग देयर स्पिरिचुअल मास्टर। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस? पूरा राज्य चला गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, whenever we act irresponsibly we suffer. नहुसा इंद्र के अब्सेंस में इतने क्वालिफाइड व्यक्ति थे कि उनको स्वर्गलोक का राजा बनाया गया टेम्पररी, जब तक इंद्र नहीं थे। नहुसा इतने क्वालिफाइड थे, तो परंतु उनकी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं था, उस वजह से वो जाकर के शची, जो इंद्र की पत्नी थी इंद्राणी, चाहते थे कि उनका विवाह इनसे हो। अरे भाई, वो ऑलरेडी शी इज द वाइफ ऑफ समवन। अब चूंकि रॉन्ग डिजायर्स आ गई माइंड में, है ना, और फ्री विल गलत डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट हैपेंड? अल्टीमेटली ही वाज कर्स्ड टू बिकम अ पाइथन। हु कर्स्ड देम? सप्तऋषिज कर्स्ड हिम एंड ही बिकेम अ पाइथन। तो कहाँ इंद्र लोक में जाकर के काफी कुछ एंजॉय कर सकते थे, पर सेंस कंट्रोल नहीं हो पाने की वजह से जाकर के पाइथन बनना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हाउ द रॉन्ग यूसेज ऑफ फ्री विल कैन पुट अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी हाई पोजीशन टू अ वेरी लो पोजीशन। इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े जजेस रहते हैं, कोई बड़े सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं गवर्नमेंट लाइन में। कितने कितने न्यूज़पेपर्स में हम लोग केसेस पढ़ते हैं कि ये जो थे, इन्होंने कोई ग्रीड की वजह से पैसे के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में अंदर फंस जाता है। कोई व्यक्ति क्रोध की वजह से किसी दूसरे का कुछ नुकसान कर देता है, कुछ ऐसा शब्द बोल देता है, उसकी वजह से फंस जाता है। कोई व्यक्ति काम वास्ता की वजह से पूरे से ही साफ हो जाता है। सो मेनी केसेस, सो मेनी
न्यूज़ेस वी हियर इन द न्यूज़पेपर एज वेल। तो सेम थिंग है, इस भौतिक जगत में भी किस प्रकार से व्यक्ति रॉन्ग यूसेज ऑफ फ्री विल की वजह से डिग्रेड होता है, और इवन अपर प्लानिटरी सिस्टम में जाकर के भी किस प्रकार से उसका पतन हो जाता है। इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा हमारा डिग्रेडेशन ना हो, इफ वी वांट टू ऑलवेज बी हैप्पी, वी नीड टू बी ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस, बिकॉज कृष्णा मीन्स द सोर्स ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। टू द डिग्री वी आर कृष्णा कॉन्शियस, टू दैट डिग्री वी विल बी हैप्पी। एक्चुअली वी ऑल आर ऑलवेज वर्किंग विद द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग अवर हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग अवर सफरिंग। हर व्यक्ति इसमें ही लगा हुआ है। एक एक कदम आप देखेंगे तो हम एक एक कदम इसीलिए लेते हैं, अपनी जीवन से दुखों को कम करने के लिए और सुखों को बढ़ाने के लिए, करेक्ट। परंतु भगवत गीता कहती है कि किस प्रकार से जितना ज्यादा हम कृष्ण के सुख के लिए प्रयत्न करेंगे, जितना ज्यादा हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियोजित करेंगे, उसी मात्रा में हम जो है वास्तविक रूप से प्रसन्न होंगे। डेफिनेटली वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बेसिक नीड्स। बट इसके अलावा जो हमारी एनर्जी है, अगर हम सही कॉन्शियसनेस में है या चेतना का स्तर ऊपर है, तो हम डेफिनेटली अपनी एनर्जी को कहाँ लगाएंगे? कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, बिकॉज वी नो दैट इट्स रिटर्न वैल्यू इज हाईएस्ट, एंड वी विल बिकम हाईली रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के मुझे एक बढ़िया एक स्टोरी याद आती है, आप लोगों को भी काफी पसंद आएगी। एक बार एक राजा रहता है जो कि बहुत ही वैसा रहता है, मतलब काफी अय्याश टाइप का रहता है, मतलब उसको मटेरियल ऑपुलेंसेस और भोग विलास में ही हमेशा बिजी रहना पसंद है, और अपनी जिम्मेदारियों को तो बिल्कुल भी नहीं निभाता। पूरे टाइम पे कैसे एंजॉय करेंगे, कैसे मजा मस्ती करेंगे, इस बारे में ही सोचता है। तो डेली बेसिस पे उसको जो खुशबूदार सुंदर पुष्प जो रहते हैं, उससे सजा हुआ बेड चाहिए रहता है, और पूरा रूम जो है रोज जो है उसको चाहिए रहता है कि इस प्रकार से सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ हो, इस प्रकार का रूम की वो अभिलाषा रखता है। तो राज्य में ही उसने एक मालिन को सिलेक्ट किया रहता है। मालिन मीन्स द लेडी हु विल कलेक्ट द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, वहां से ला करके उसके रूम को वो सजाएगी। तो मालिन तो रोज की ही भांति खुशबूदार सुगंधित जो पुष्प रहते हैं, फूल रहते हैं, उनको ला करके पूरा बेडिंग अच्छे से सजा देती है, रूम को भी सजाना शुरू कर देती है। पर इतना एक दिन थक जाती है वो कि उसको लगता है कि ठीक है, राजा को तो अभी आने में समय है, थोड़ी देर के लिए मैं ही थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। तो अब रेस्ट के लिए वो जो शैया जो उसने सजाई थी राजा के लिए फूल की, उसमें ही थोड़ी देर के लिए वो 2 मिनट के लिए वो रेस्ट कर लेती, पर थकी इतनी रहती है कि 2 मिनट का सोच करके सोती है और आधा घंटा सो जाती है। और उसके बाद में राजा आता है। राजा आने के बाद में देखता है कि एक मालिन जो है ये इसकी शैया पे सोई हुई है। तो वो देख करके एकदम आग बबूला हो जाता है, बहुत ही क्रोधित हो जाता है कि कैसे, मतलब एक सर्वेंट लेडी स्लीपिंग ऑन किंग्स बेड, हाउ इट इज पॉसिबल। तो बहुत क्रोधित हो जाता है, तो जोर से चिल्ला करके उसको बुलाता है। हम्म, तो इतना तेज चिल्लाता है कि मालिन तो उठ जाती है, उसकी नींद खुल जाती है, घबरा जाती है कि अरे मतलब राजा ने देख लिया मैं उसकी शैया पे सोई हुई हूँ, बहुत घबरा जाती है। तो तुरंत वो अपने सिपाहियों को बुलाता है, 2 ताली बजा करके सिपाही आते, बोलते हैं इस मालिन को बांध दो। तो बांध देते हैं, बोलते हैं इसको 50 कोड़े की सजा देते हैं, इसको 50 कोड़े मारे जाएं। तो पहले तो मालिन घबराई थी, राजा ने भी उस मालिन का घबराया हुआ चेहरा देखा था। शी वॉज एंशियस कि राजा ने पकड़ लिया। जैसे ही उसको बोलते हैं इसको 50 कोड़े की सजा दो, तो ये जो है वो मुस्कुराना शुरू कर देती है। और जैसे ही इसको पहला कोड़ा पड़ता है ये हंसने लगती है। तो राजा को बड़ा कंफ्यूजन होता है, कह रही पहले तो ठीक है, पहला का रिस्पॉन्स तो इसका नॉर्मल था कि शी वॉज फ्राइटेंड कि ये एक राजा की शैया पे सोई हुई है, बट अभी एक कोड़ा पड़ने के बाद ये हंस रही है, ये तो रिस्पॉन्स समझ में नहीं आया। उसको 1-2 कोड़े और मारते हैं तो और तेजी के साथ वो हंसती है। तो राजा को लगता है कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है, क्योंकि पागल व्यक्ति इस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर सकता है कोड़े मार रहे हैं और हंस रही है। तो बोलते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है।
तो उसको बोलते हैं और तेज कोड़े मारो, तो और तेज कोड़े मारते तो और तेज हंसती है। तो उसके बाद में फिर राजा बोलते हैं रुको, उसके पास जाके बोलता है कहीं तुम पागल हो गए हो क्या, तुमको कोड़े मार रहे हैं, तुम्हारी स्किन में कोड़े का निशान है, लाल पड़ रही है तुम्हारी स्किन, तुम हंस रही हो। तो बोलती है मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मेरे एक एक्ट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मेरी गैर जिम्मेदारी, छोटी सी गैर जिम्मेदारी पे, कि मैं मालिन होकर के थकी थी इस कारण से राजा की शैया पे सो गई, एक छोटे से अपराध की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है, 50 करोड़ की सजा मिल रही है। तो जो राजा जिसका कर्तव्य है कि पूरे वो जनता की हमेशा सेवा करे, जिम्मेदारी पूर्वक रहे, वो इतनी गैर जिम्मेदारी से रह रहा है, तो उसको कितनी बड़ी सजा न मिलेगी, ये सोच करके मैं हंस रही हूँ। तो ये जब सुनता है राजा, तो वो तो एकदम ही मतलब क्लीन बोल्ड हो जाता है, एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है, बोलता खोलो खोलो इसको, खोलो इसको सजा देने की जरूरत नहीं है। ही बिकम सो फ्राइटेंड कि हाँ मतलब ही कैन वेल रिलेट ना, कि कैसे छोटी सी गलती से इतनी बड़ी सजा दे दी उसने, और ही इज कम्प्लीटली एक्टिंग इन इररिस्पॉन्सिबल वे, पूरा मतलब भोग विलास के हिसाब से अपनी गाड़ी चला रहा है। राजा बहुत फ्राइटेंड हो जाता है, और उस एक वाक्य से उसका जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाता है, और वो आगे जा करके जो है एक जिम्मेदार राजा की भूमिका निभाता है। सो दैट इज द पावर ऑफ साउंड एक्चुअली, कि हम सभी देखिए, हम सभी जो भक्ति में आए हैं, तो किसी न किसी भक्त की बात, प्रभुपाद की बात, किसी न किसी की वाणी की सुनकर ही हम यहाँ तक आए हैं, या जो भी हमारी चेतना का स्तर हुआ है अभी तक, वो श्रवणम के माध्यम से हुआ है। सो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, देखिए जो अपनी जो प्रोसेस है वो श्रवणम से ही शुरू होती है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम से ही हमारा चालू होता है। सो हियरिंग इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक हम नहीं सुनेंगे, जब तक चेतना के स्तर भी ऊपर नहीं आएगा, जैसे ये फल क्लम एनालॉजी होती है ना, जैसे एक तराजू है, उसमें अगर मैं यहाँ पे अगर अभी तो बराबर है, यहाँ पे अगर मैं 5 किलो का बांट डालूंगा तो ये पार्ट उड़ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे अगर मैंने 10 किलो का डालूंगा तो ये पार्ट उड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे ही डिवोशनल नॉलेज का वो बांट पड़ता है, वैसे ही कॉन्शियसनेस हमारी ऊपर उड़ जाती है, और जैसे ही वो डिवोशनल नॉलेज फिर एवेपोरेट हो जाता है, तो फिर कॉन्शियसनेस फिर से हमारी नीचे आ जाती है। हमारे ही अंदर तो हमने देखा है कैसी डिवाइन फीलिंग्स भी कभी आती हैं, कभी हमारे अंदर ही डेमोनियक फीलिंग्स आती है, सेम पर्सन अलाउइंग बोथ डेमन्स एंड डेमीगॉड टू लिव टुगेदर, है ना। कभी कभी हम खुद ही लोगों की छोटी सी बात पे ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कभी कभी जब हमारा चेतना का स्तर अच्छा रहता है, तो हम लोगों की बड़ी कड़वी बात को भी सहन कर पाते हैं। तो हमने अपने अंदर ही तो इस प्रकार के रिस्पॉन्सेज ऑब्जर्व किए हैं, है ना। तो इन दैट वे जितने ज्यादा हम अच्छे हेल्दी एसोसिएशन में रहते हैं, उतनी ज्यादा हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज का संचार होता है। इस कारण से तो बोला जाता है कि हमको जो अलग अलग जो डिवोशनल सर्विसेज की प्रोसेसेस हैं, उनसे किसी न किसी माध्यम से कनेक्ट रहना जरूरी है। जैसे हम हरि नाम करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है, हम भागवतम पढ़ते हैं, हम डीटीज अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, धाम वास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने 5 एस्पेक्ट्स बताए भक्ति के, कोर डिवोशनल सर्विसेज, जिनके माध्यम से हमारा शुद्धिकरण होता है, वी गेट प्यूरिफाइड एंड वी मूव अहेड। और बाकी सारी चीजें भी इन्हीं एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए है बेसिकली। तो so in that way ignorance gets removed by reading Śrīmad-Bhāgavatam। इग्नोरेंस ही वो है जो हमको डिसअलाउ करता है कृष्ण के पास जाने से। आउट ऑफ इग्नोरेंस अ पर्सन ट्राइज टू enjoy his senses and try to get happiness through false ego, satisfaction of false ego। यही इग्नोरेंस जो है भागवतम पढ़ने से जब कम हो जाता है, तो हम हमारे ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, और हम चीजों को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। टू सी द राइट थिंग्स इन राइट कॉन्शियसनेस विजडम इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज जनरली व्हाट हैपेंस, अ पर्सन एंड्स अप सीइंग द राइट थिंग्स विद रॉन्ग मेंटालिटी और रॉन्ग थिंग्स विद राइट मेंटालिटी, लाइक वाइस वर्सा। तो इस प्रकार से लोग बाग जो है ज्यादातर प्रभावित उन चीजों से होते हैं जो उनको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, इमीडिएट हैप्पीनेस देती है ना। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ जाएगा।
जैसे छोटा बच्चा, उसके सामने अगर आप एक एप्पल रखेंगे और कुरकुरे रखेंगे तो क्या चॉइस, क्या सिलेक्ट करेगा? डेफिनेटली वो कुरकुरे खाएगा। पर एक अगर हेल्दी ह्यूमन, मतलब कोई बड़ा बड़ा बच्चा है या कोई वयस्क है, तो वो समझेगा कि थोड़ा टेस्ट कुरकुरे से मिलेगा, बट if I have to select one among the two, I'll go for apple. So in that way, Shreyas or Preyas, short-term enjoyment, long-term enjoyment. Shreyas means long-term enjoyment. Preyas means short-term enjoyment. So again, free will, conscious choice we have to make. लॉन्ग टर्म में जाना है कि शॉर्ट टर्म में जाना है। एक एक हैबिट को हमको, एक एक नेगेटिव हैबिट को हमको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है ना, वी हैव टू पे द प्राइस ऑफ एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस। असुविधाओं को स्वीकारने की हमको जो है कीमत चुकानी पड़ती है, तो जा करके हम उस डिवोशनल लेडर में नीचे से एक कदम ऊपर उठ पाते हैं। So in that way, a lot of facilities has already been created by Srila Prabhupada in the form of his books, in the form of his devotees, in the form of his temples, in the form of so much of association. अभी हमारे ऊपर है कि हम कितना इसका लाभ उठा सकते हैं, है ना? So we should sincerely pray to Krishna to eradicate all the misgivings from our heart, so that we can offer this heart to Krishna. And offering one's heart to Krishna means entering into the zone of unlimited happiness. Thank you very much. Hare Krishna. So I just thought to speak for a while so that आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो उसके माध्यम से ये सेशन थोड़ा सा और इंटरेक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज इट्स जस्ट वन वे, आई एम सेइंग एंड यू आर hearing. So at this point, I would like to invite any questions or any good points which you liked from the class, that also can be shared. Or if someone is having any question, they are most welcome. Hare Krishna, thank you so much for such a wonderful class. And you said many stories. It was very, we can understand it very easily, Prabhuji. Thank you so much. Requesting any devotee, if you have any questions, you can unmute your mic and ask, or you can write it in the comment box. Hare Krishna. Prabhuji, I have a realization कि आपने जैसे बोला ना कि आप भक्ति में आने की कोशिश करो तो रास्ता खुद मिल जाता है। Correct. एग्जैक्टली ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मैंने गीता मेरे पास, श्रीमद् भागवत गीता मेरे पास बहुत सालों से रखी हुई थी, और जब पैंडमिक शुरू हुआ तो मैंने जस्ट उसको हाथ में उठा के पढ़ना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा क्या कर रही हो तुम, क्योंकि मैं ज़ोर से पढ़ रही थी, तो ही वॉज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन अपस्टेयर्स, तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, बट देन आई couldn't stop, and I actually tried to record my voice so that I can share it with my parents. That's one thing I did, and that was the beginning. And then I started listening, and at that point then, I got that interest in that. I started listening on YouTube and some online sections of Bhagavad Mahapuran. I started listening, and it just changed my life. And then also I remember when this was happening, I started chanting Shivji ji ka mala. I started doing that in the beginning. That was the beginning. I started chanting that mala, and then just in few days my mind was diverted towards Thakurji, towards Krishna. And it's already like 2.5 years now, but that was the beginning. Like, you start something, and then my Guru Pita is in Vrindavan, but I was very little when I met him. My sister and my mom, they go to Vrindavan and they meet him often. But then I think after 1 year or after 8 months, I got connected with him as well. So everything is getting so linked together that if you are really conscious into bhakti, then you will get path, and he will do everything for you. So this is what I realized, and I thought I should share, because I wanted to share it with this group, that how I got into Krishna consciousness. And then now it's no turning back. Like,
every day my life start with him. My night stop with him. Like right now, it's already 11 o'clock, 11 p.m. Sometimes I sleep at 12 o'clock after the section ends at 11:30. But I feel like this is the best time because if I don't wake up in the morning, I am getting this class. I'm reading, listening to Thakurji. So it's such a beautiful feeling. And there's no turning back. The whole day I think about him. Since I am working from home, so I get more opportunity to do little seva, the breakfast, lunch, and dinner, all that stuff I do. But it's just so beautiful. Like before 2.5 years, there was nothing. We used to just do puja, aarti, and all that stuff. But now, when you go to the temple, you go to your. It feels like you're going to your parents' home, not just you're going to a temple. That feeling is different. You're going to your parents' home. That's my home. So I go as a child saying, I am here. So, like, when child makes things like, child can ask for stuff. I want to eat this. I'm coming because I want to eat prasad. So most of the time this happens whenever I go, I get prasad at the temple. That I'm going to my parents' home. So it's like such a natural and such a closing, that being belong to them kind of a feeling. It's different now. Which temple you go? So we have ISKCON temple at Philadelphia. Okay, It's only Philadelphia. 15-20 minutes away from my home. I don't go often, but uh, sometimes I go. Like I just got invited yesterday only. They texted me if you want to do seva for Janmashtami or Vyas Puja. So they texted me last night. So I'm asking them when is it because it's weekday, so I have to take off. So I'm like planning. Okay, So when this happens, then I try to be there. So okay. but You are a doctor? no, I'm into IT. Oh, you are But I into work IT. in the hospital. I work in hospital, but in IT. Okay, okay, okay. But yeah, it's just such a beautiful feeling getting into connected to Krishna consciousness. It's like I don't feel like he's Bhagwan. It's like they are my parents. Like it's such a beautiful feeling. In the South India, actually, people carry the same feeling for Lakshmi Narayan. Yeah. They in the South India, if you go na, people will worship Lakshmi Narayan like their parents only, so that it becomes more personal. Yeah, so I have Laddu Gopal and then I have Govind and I have Thakurji and Shriji. So the problem is, and then I have Jagannath Baba also, and then Jagannath Baba came directly from Jagannath Puri, and my Thakurji and Shriji came from Vrindavan, directly from Vrindavan. I just had that feeling that I should have that, and somehow it happened that I got them from Vrindavan. Somehow I got Jagannath Baba, and from Prabhuji only from Jagannath Puri. I think 1.5 years back we got the prasad. It's such a beautiful like you think about them and they come to you. So and now it's your responsibility to take care of them as your family member. Like I think more than your family member. That's only you can like because I treat them more than anybody else. Like because kids and my family are secondary. They are my first parents. And sorry to say that I actually not before I used to talk to my parents every other day, but now I don't feel like talking to them. Once in a week maybe I talk because I feel like I'm already talking to my parents. They are here with me. So I know it's not a very good feeling, but it's the truth. So I thought I should just say it because I don't know if I'm doing it right or not, but that's what's happening with me. Good. Thanks for sharing your feelings. Yeah. Thank you. Acha, Vinitra Mataji wrote your takeaways. Free will is important in decision making, which affects our future. Spatial return value is high when one gets involved in reading scriptures. When spiritual knowledge is increased, consciousness moves up. Faith is very important in spiritual life. Clarity is power. Nice collection. Okay. Thank Krishna Prabhuji. Prabhuji, I have one question. Okay. Please ask. Prabhuji, how to increase faith? We know we should have faith and devotional service, but sometimes it happens that we lose faith. How to increase that faith, Prabhuji? If the basis of our faith is strong, and what are the basis of our faith, that is very important. So like
I have taken many sessions on faith because I was involved in youth preaching, and unless we give faith development, unless we like take this faith development program for the youths, forget that they will accept Krishna consciousness. They won't even start with chanting of one round of Hare Krishna mantra. So that's why I have been dealing with this central concept of faith, and I used to give them a lot of intellectual explanation about how they can first of all have faith in the existence of God, the reciprocating nature of God, then faith in the scriptures, how the scriptures are correct, and then how, like, if they go ahead keeping scriptures as the basis of their life, then how, like, how much beneficiary they will be. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फेथ के ऊपर। जैसे एक दिन मेरा मेरा मेरी एक नस कट गई थी, मतलब चाकू से थोड़ा सा कट गया था, तो थोड़ा बहुत खून निकला, फिर बंद हो गया, मतलब कुछ एक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ओनली केम आउट, बट इट वाज अ कट, तो आई कुड रिकॉग्नाइज कि ज़्यादा भी खून बह सकता था। थोड़े दिन बाद मैंने देखा कि किस प्रकार से हमारे ही टेम्पल के गार्डन में रात में कुछ किसी कारण से पाइप कट गया था, तो पाइप कटने की वजह से पूरा ही टंकी का पानी जो है वो गार्डन में फैल गया था, पूरी टंकी खाली हो गई थी। तो उस समय जब मैंने देखा तो मुझे स्मरण आया कि जिस समय हमारा पाइप कट हुआ था उस समय हमारी टंकी खाली नहीं हुई, खून की टंकी जो है वो खाली नहीं हुई पर ये टंकी तो पूरी खाली हो गई। तो ये कैसा डिवाइन अरेंजमेंट है। डेफिनेटली वी ऑल नो कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग फिनोमेना होता है, उसकी वजह से बहता हुआ खून जो है वो जम जाता है, इसलिए पूरे से नहीं बहता। अदरवाइज जो क्लॉटिंग फिनोमेना ना हो तो फिर तो मेरी टंकी भी खाली हो जाती है उस दिन खून की टंकी। सो इन दैट वे हु इंट्रोड्यूस दिस क्लॉटिंग फिनोमेना विच प्रोटेक्टेड मी। कई बार लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है पर थोड़ा खून बहने के बाद में ब्लड क्लॉट हो जाता है, पूरा खून नहीं बह पाता, लोग बेहोश भी हो जाते हैं रोड में, बट इट्स नॉट लाइक द एंटायर ब्लड फ्रॉम देयर बॉडी गोज आउट लाइक दैट हैपेंड विद द वाटर टैंक। So in that way, seeing divinity in the nature, seeing how this material nature is acting, seeing through the eyes of intelligence, through the eyes of wisdom, हम इसी निष्कर्ष पे आएंगे कि the things are defined in a much more intelligent way than what we can imagine. So in that way we gain faith. Secondly, when we perform devotional services nicely, then naturally the faith is awarded to the living entity, to the practicing devotee. So with a small faith we start devotional services, and in return what we get is higher faith. छोटे पैसे से हम बिजनेस को चालू करते हैं, फिर वो बिजनेस समय के साथ में अगर हम अच्छे से कर रहे हैं, बिजनेस को ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो बिजनेस हमारा बढ़ता चला जाता है। तो पैसे का तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, पर बाद में हो सकता है कि वो एक्स अमाउंट जो है वो 1000x अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए अगले 10 साल में कि अगले 20 साल में। तो इसी प्रकार से वी इन्वेस्ट एक्स अमाउंट ऑफ फेथ, एंड व्हेन वी एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विसेज प्रॉपर्ली, देन वो उसकी रिटर्न वैल्यू जो है फिर बढ़ करके हमको मिलती है। So that's how this Krishna conscious business goes ahead. ऐसे समझ सकते हैं। Prabhuji, but when someone says anything, it will be disturbed. Is it true or is it false? We are doing like that, it will affect us, our faith also. How to avoid this, Prabhuji? Whatever one is saying, what is the basis of it, that is also very important. हर चीज में एक स्टेप पहले जाना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है और उसके कहने के पीछे कारण क्या है और उसका आधार क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग ए स्टमक पेन and if I have hired a taxi and the taxi driver asks me, sir, what happened, I tell him I have a stomach pain and he starts giving medication. It's not like I will cancel my visit to the doctor because he is suggesting me something. What is the value of what he is saying?
There is a stomach pain because of there can be multiple reasons for stomach pain. And he is not a doctor, he's a driver, taxi driver. So I can't pay much heed to his words. So in the similar way, whom should we hear is an important concept. Kiski baat hum sune. So in that way, there are Srila Prabhupada's proposal and there are mind's proposal as well. Whom should we hear concept यहाँ भी काम आता है. Whom should I hear? Whom should I hear? Should I hear my rascal mind or should I hear Srila Prabhupada's transcendental words of wisdom? So in that way, whom should we hear is a very important concept. ये concept clear रहेगा तो फिर हम सुनेंगे तो लोगों की, पर जिनसे सुनना है उन्हीं की बात सुनेंगे, जिनसे नहीं सुनना उनकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे. So like that it goes. Thank you so much, Prabhuji. We'll have it so that we can increase our faith also, because it sometimes affects us. If someone says you're doing wrong, it's not correct, that time it affects Prabhuji, our faith. So we can go on reading scripture so that I can increase my faith. Yeah, sometimes people say like that. we should also question them that according to me you are wrong. What you are saying is also wrong. So प्रभुपाद से जैसे चर्चा होती थी ना, प्रभुपाद से कोई प्रश्न करता था, प्रभुपाद उसको काउंटर प्रश्न करके उसको जो है वो हरा देते थे. No, firstly you tell me that you are the body, are you the body or are you the soul, then I will answer your question. तो वहां पे इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो है उसको फंसा देते थे. MIT में गए थे तो बोले थे कि you are such a big institute, MIT, and you don't have the department of knowledge which will identify the difference between living a body and the dead body. तो है ना, जैसे मगर जो है वो पानी में लड़ाई करता है, वो किसी भी जानवर को खींच करके पानी में ले जाता है ताकि उसकी शक्ति बढ़ जाती है पानी में, है ना. अगर जमीन पर अगर वो फाइट करेगा तो वाइल्ड पिग्स ही उसको हरा देंगे, करेक्ट. और वो अगर पानी में अगर खींच करके ले जाएगा तो हाँ, बड़े बड़े जानवरों को भी वो ध्वस्त कर देगा. तो दैट वे इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वी टेक देम टू आवर साइड, then deal with them. But if we're saying anything also, they won't understand, Prabhuji. They say, no, you are wrong, but we are right. They say, but we cannot argue with them as well. हाँ, तो sometimes we have to ignore as well. Sometimes we have to ignore as well. When a person is not understanding, then what can we do? Ignore and move ahead. And also how to keep reminding ourselves that we are not a body, we are a soul. Because when we think that we are a body, that's where the attachment comes in. And it's really hard on a daily basis to actually forget that, these attachments are just a fake thing. It's just, you just need to ignore it, because that's the problem. Like, I always try to remind myself that what is happening is just happening. Just ignore it. It's just happening because it's supposed to happen and it will go away. It's like a dream. But then keeping that and remind yourself and get into practice is really hard, that I am a soul. I always forget that I am a soul. I behave like I am a human being. I have a body, I have family, and I have responsibilities to take care of, and then sometimes I get involved into that. So I don't know how you all do it. No, actually in spirituality, there's something called as knowledge, there's something called as realization. So we have the knowledge that we are not the body, but we are the soul, but we are looking for the realization. How the realization will come? When we are very much involved in or when we are very much sincerely executing this path of devotional services. So then, by the mercy of Krishna, by the mercy of spiritual master and Krishna, the realizations will be awarded to a sincere sadhaka. So, and the realizations are also lower level of realizations and higher level of realizations. So knowledge, we have understood that, okay, I am not the body, I am the soul, but we have not yet realized it, and we are looking for realizations. So as we keep on growing in the path of bhakti, then we keep on getting the fresher and fresher realizations as well. As today I said, like,
If we will engage our senses in the services of Krishna, the senses will be purified and we will be betterly situated. This is the concept. This is the knowledge aspect, theoretical knowledge. But when a person really starts engaging his senses in the service of Krishna, what he gets is realization. And it's a long process. So that's why along with enthusiasm, one need to have utsaha, nishya, dharya. Along with the enthusiasm, one also needs to have patience. Because as we put something in the cooker, we just can't like open it after 2 minutes. We need to allow it to be on the gas for 20-25 minutes in order for the rice or potato to cook. So the process is still working. अभी 2 मिनट बाद खोल देंगे तो फिर लगेगा कुछ तो हुआ ही नहीं इसमें. So in that way, along with enthusiasm, we also need to have patience. And based on the realizations of the mature devotees, our faith remains intact. Okay. And we are motivated to give spiritual inputs, and in that way we patiently wait for the realizations. So that's how it goes. Okay, so yes, Mataji. Prabhuji, I have one more question, but it's not related to this. It's something other. Can I ask Prabhuji? Okay, last one. Yeah. Prabhuji, we know something with how to forgive someone. We know it happened because of our past karmas, but we'll get angry and we will react to it and then realize it's all because of my past karmas. But how to forgive that, Prabhuji? And how to not get angry at that moment? There are two cases in forgiveness. If the person is still having the corruptive mentality, then it's not wise to forgive him. But if he has done something wrong out of mistake of mind, not because of the mistake of heart, then surely we also keep on committing the mistake of mind. So it's a wiser option, it's a wiser decision to forgive him. Like for example, sometimes a child may have out of forgetfulness, he might have like put it something on the gas and the things got burnt. Like once it happened that out like there were 10 cakes which were put it in the oven, and the person who switched it on was supposed to switch it off after 40 minutes, but he went out for chanting, and during chanting he slept also. So then like when he came back after 1 hour or 1 hour 10 minutes, then everything got burnt. So that was not the mistake of heart, it was a mistake of mind. So in such cases where the mistake of mind happens, one can forget by giving a reminder, by giving little bit dose. But if it is a mistake of heart, like Ravana was having the mistake of heart that he abducted Sita and was not willing to give up, there was no question that Lord Ram will forgive him, but Lord Ram basically killed him. So in that way, we have to understand that in what cases to forgive, in what cases to react. Thank you so much, Prabhuji. Thank you, Hare Krishna. So it's already 8:49. So I think. प्रभु जी एक मेरा प्रश्न है. अच्छा पूछिए. एक तरफ तो कहते हैं कि we are not a body, we are a soul. और प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में हमने एकादशी में सुना था कि for worshiping Krishna we have to keep our body fit without any problem, without any disease. We should be active enough. क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक अच्छी पूजा का विधान हो सकता, संभव हो सकता है. तो इस बारे में आपके क्या कमेंट्स है? क्योंकि अगर बॉडी नहीं होगी तो सोल का कैसे काम होगा? कहाँ रहेगी सोल? अकेले भटकती रहेगी और सोल तभी तो वो सोल आत्मा साक्षात्कार कर पाएगी. हाँ, तो इसीलिए बॉडी की टेक केयर के लिए तो रिकमेंडेशंस है. बस अटैचमेंट को लेकर के है कि अटैचमेंट से हमको ऊपर उठना है. बॉडी की तो टेक केयर करना ही करना है. देखिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरु के भी पिताजी थे या गुरु के गुरु थे, वो बताते हैं कि एक साधक को सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए, उसके बाद उसकी साधना का ध्यान देना चाहिए, उसके बाद उसकी सेवाओं का ध्यान देना चाहिए. तो प्रायोरिटी में भी बॉडी को
रैंक 1 पे रखा गया है, रैंक 3 पे नहीं है। रैंक 1 पे बॉडी है क्योंकि उसी वो बॉडी, सिक बॉडी जो है, sick body will catch our attention towards body, healthy body will allow us to serve Krishna। तो इसके लिए हमको जो है स्वस्थ रहना है शरीर से, ताकि हम भगवान की सेवा साधना अच्छे से स्वस्थ शरीर से कर सकें। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो फिर प्रभु जी इसमें आत्मा और उसका क्या हुआ कि हम शरीर हैं, वो आत्मा नहीं है, इसका क्या कॉन्सेप्ट, इसके साथ कैसे जोड़ेगा? अब जब हम अभी पूरे जैसे से discuss हुआ। जब हम पूरे से अपने आप को शरीर मानते हैं, तो फिर हम पूरा ध्यान कॉस्मेटिक्स में लगाते हैं, अपनी हेयर स्टाइल में लगाते हैं कि कैसे हम और ज्यादा से ज्यादा सुंदर लग सके, कैसे लोगों को इम्प्रेस कर सके, है ना। सो दैट इज कॉल्ड बॉडीली कॉन्शियसनेस। टू कीप द बॉडी हेल एंड हेल्दी, always recommended, but just to focus around impressing others, using decorating this body in a way, कैसे हम लोगों के अटेंशन को सीख कर सकें, कैसे लोग हमारे बारे में ही बात कर सकें, तो दैट इज समथिंग विच इज डेविएटिंग अस फ्रॉम द पाथ ऑफ भक्ति। तो इसकी इस बॉडी को हमको एक टूल के रूप में यूज करना है भगवान के पास जाने में, है ना। दिस बॉडी शुड बी सीन एज अ शिप टू क्रॉस द ओशन ऑफ नीसेंस। और नहीं तो इसके विपरीत, अगर हम बॉडीली कॉन्शियस ना करके केवल इस बॉडी के बारे में ही देख रेख करेंगे, कैसे इस बॉडी को ज्यादा सुख मिलेगा, तो वो तो फिर बेसिकली हम उसमें मेन लक्ष्य से अपने भटक जाएंगे। ठीक है। Thank you so much, Prabhuji. It's such a nice class, and you answered many questions. You cleared many doubts for us. Yeah, today I finished the class much earlier Yes, so that we can Prabhuji. have some question answer session as well. Yes, Nice. Prabhuji. We'll meet again later, Thank maybe you so much. next month. Thank you. Hare Krishna। जगत गुरु श्री Hare प्रभुपाद Krishna. की, Jai. अनंत कोटि वैष्णव Vancha- वृंद की, गौर प्रेमानंदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, ma'am. Thank you, everybody.